So, hello everybody. I hope everybody is there, right? Just now I have started the class, so nothing to worry, right? Just now I have started the class, so nothing to worry, right? Please join. I hope everybody has joined, correct? सब लोग आ गए. क्लास अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे कुछ पीपीटी ट्रांसफ़र करने थे, इसीलिए मैंने ब्रेक किए थे, ठीक है? चलिए, अब ज़रा सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, करेक्ट? आपके पास स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी की बुक है, उसको ओपन कर लीजिए, राइट? पेज नंबर भी लिखा है इधर, राइट? पेज नंबर 14 के आसपास आ जाइए, 14, 15, 13 कुछ आ जाइए, नियर अबाउट 14 पेज, राइट? सब लोगों के सामने है, एक बार रिप्लाई करो, यस और नो. करेक्ट, प्लीज रिप्लाई. Yes, very nice, very nice. चलिए, then I am going to start now. Listen carefully. The first is Kanban, Kanban. Now listen. One thing what I want is, whatever I am explaining you, after understanding, correct? Are you able to understand or not? In your question paper, right? These kind of sentences will be there. Just you have to recognize whether one is correct, two is correct, one and two are correct, like that only. क्लियर है, समझ में आ गया? उसी चीज की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी पढ़ाई भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, तो इसीलिए आई हैव डन दैट. ओके, तो प्लीज आप या तो इधर देखिए या आप अपने बुक में भी देख सकते हैं. द सेम थिंग विल बी देयर, नथिंग टू राइट. वेन एवर देयर इज समथिंग टू राइट आई विल गिव यू, राइट इट डाउन. तो फिर आप उसको फटाफट लिखना, बट पहले अभी बुक में देख लो और इसको पढ़ो और समझो कि यस वेदर इट इज ओके और नॉट. मीन्स कनबन में याद करो क्या था, कुछ कार्ड और साइन जैसा, जिससे हम डिमांड और सप्लाई को सिंक्रोनाइज कर रहे थे. तो आप एक बार पढ़िए कि क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं. वेदर आर यू गेटिंग और नॉट, एंड प्लीज रिप्लाई कि यस सर गॉट इट. तो मैं आगे बढ़ूंगा. No, don't write it. This is already there in the book. Right, page number 14. Okay, got it. Very nice. Very nice, right? Then see the next point, because in examination 1, 2, 3, 4 statements will be there and they will ask you 1, 2 correct, 1, 2, 3 correct, all are correct, like that. Okay, so right, come to the Kaizen. So in Kaizen, again what I have told you, small changes on the regular basis in each and everywhere, right, wherever it is applicable. So please see the point, and whether you are getting or not, tell me. So my dear friends, why I want you to understand and to read this, because exactly this kind of sentences will be there in the questions. So after understanding, you must at least recognize the correct options. Yes, this is right, like that. So I want that kind of practice, right, in class itself. That is why I am giving like this. And just by writing na, that is the waste. By writing in GS na, writing there should not be much writing.
Understanding and the getting points are important, right? Okay, very nice. काइजेन के और भी 2 पॉइंट हैं, जरा पढ़िए प्लीज. And I think our English medium student now also should not get any difficulty, right? See, each and everything is there, nothing to worry. Got it. Very nice. Very nice. Even if you have any doubt, you can just ask me, ki, sir, this point or this line I am not getting. So I will explain. Nothing to worry. Now, see, MRP versus JIT. I have given the table, right? MRP versus JIT. I have given the table. So right now I am explaining once again in detail. Try to get my point. Material requirement planning. What it is written? It is a push system. Push system means you are pushing material, you are forcing material to the production. कि तुम्हें ये चाहिए ये भी लो, ये चाहिए ये भी लो, पहले ही खरीद करके सब दे दिया, वैसा. Which forces the material into production to meet future demand, right? The focus on keeping the safety stock and inventory. So in MRP approach we keep safety stock and inventory. Inventory means जो आप भी स्टॉक जो भी रखते हैं, करेक्ट, वो इन्वेंट्री कहलाता है. और सेफ्टी स्टॉक मीन्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ इतने प्रोडक्ट जो कि डायनामिक सिचुएशन में आप उसको यूज कर सकते हैं. इन केस ऑफ डायनामिक डिमांड, सपोज देयर इज ए चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड, देन दिस सेफ्टी स्टॉक विल सेव यू, यू विल सेव योर प्रोडक्शन, करेक्ट. सो दिस इज अवेलेबल इन द MRP अप्रोच, राइट. अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए. It can handle dynamic situation, of course, because safety stock is there. Normally average worker is required, yes or no? Average worker is required because average means of course the computer training, the basic knowledge, there is a must demand of that. वो तो देना पड़ेगा. आप सब सारी चीज़ें कंप्यूटर ऑपरेट करना, नॉलेज, वो सब होना है. But as compared to JIT, here average worker is required, but in JIT smart worker is required, correct. So normally average worker is required because already you have provided all the material, computer, everything is there, and it is best suited for job or batch type of production. So what is that, correct? I will explain it right now. First of all, see the comparison table, then I will explain. Now read the JIT. What is JIT? एक बार पढ़िए. Just in time. Okay, fine. Then come to these 2 points. Dynamic and experienced worker is required and it is suited for mass production. So now I am explaining you a little bit, correct, idea of job production, batch production and mass production. This is suitable for mass production. Before that, I am giving you one example. First of all, try to understand. Suppose there is a
a small get together at your home, correct? A small get together, correct? Chota, chota, a small get together. So whatever material is required, आप क्या करेंगे? You will purchase at a time and you will give all the material, you will supply all the material, because we are talking about a small level. But suppose there is a big function, correct? There is a mega function like that. Then what will you do? Will you purchase entire material at a time? No, because there will be some storage problem. There will be some finance problem. There may be chances of wastage of material, correct? So what will you do? So you will purchase few quantity, and then you will take phone number of that supplier and you will just suggest them ki okay, I will call you whenever there is a need, right? So that is JIT, means whenever the big फंक्शन इज देयर, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कुछ मास प्रोडक्शन की बात होगी, मास प्रोडक्शन समझ गए, एक साथ हजारों लाखों प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इन दैट केस हम एक साथ रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, तो हम थोड़ा थोड़ा जब जब ज़रूरत है तब तब खरीदते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल का इन्वॉल्व होता है. दैट इज कॉल्ड एज GIT. मीन्स MRP approach and GIT approach both are having some advantages and disadvantages. So for mass production, GIT approach is suitable, and for job and batch production, MRP is suitable. So first of all, I am explaining you a little bit about these kind of production and their comparison. Listen carefully, right? See, two things are there, correct? Quantity and variety, right? So when quantity is more but the variety is less, variation is less, it is called as mass production. It is called as mass production. And if suppose variety is more but the quantity is less, it is called as job production. Means variation will be more, because by each job the variation will be there, right? And the third is between these two, suppose both are on middle range, that is called as batch production. Batch production means, my dear student, I am giving you one example. Suppose we want to buy a shirt. मॉल में जाते हैं, उधर हजारों शर्ट्स होते हैं, राइट? और हजारों शर्ट्स में से जो हमें चाहिए हम वो परचेज कर लेते हैं, करेक्ट? दैट इज द मास प्रोडक्शन एग्जांपल, कि दे हैव जस्ट डिजाइंड एंड completed thousand and thousand of shirts and all are available, we have to buy only. But suppose I request a good tailor and just I'm giving a order or entire students myself, correct, as per our design, as per our measurement, correct, design the shirt. So that will be like job production. So there will be much variation, because for each cases the shirt will be different. So that is job production. Means the variety quantity will be less but the variation will be more, and between these two there is a batch production. So this is like a mega event I have told you. So here, correct, JIT is suitable, because in mass production huge involvement of inventory, raw material is there. So JIT does not support it. It tells us just buy whatever is required just in time, correct? But for these two, MRP is suitable. Means as per the advantage and disadvantage of JIT and MRP, what we do, the uses of both are different. Getting my point? So for this kind of production we prefer MRP, and for mass production we prefer JIT. Getting my point? So you can also write it down. आप लिख सकते हैं इसको.
क्लास नोट में लिख लो, क्लास नोट में दे दीजिए हेडिंग चैप्टर नंबर 1 and 2. We will study 1 and 2 together because chapter number 1 and 2 actually are one only, but I have separated in book chapter number 1 different, 2 different, so that contents will have some dissimilarities, but actually those are one only, right? So give heading chapter number 1 and 2 and just write down these things, correct? Whatever concept I will explain you extra point something, you can write down. हाँ जी, हर्षित बोल रहे हैं सर, हाउ JIT इज फॉर मास प्रोडक्शन व्हेन आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑन डिमांड बेस्ड ओनली. देखो सी हर्षित, मास प्रोडक्शन में मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो अगर एक ही बार में खरीद लोगे, राइट, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो JIT हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें पैसे को क्या करना है, बचाना है, ताकि आगे भी हम उसका यूज़ कर सकें. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए वहाँ पे JIT जब जितनी ज़रूरत है उतना ही मंगाएंगे, क्योंकि अगर सारा पैसा आप मटेरियल परचेजिंग में लगा दो तो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, फिर आगे का काम कैसे करोगे. मनोज पूछ रहे हैं सर ये पुल सिस्टम क्या होता है. देखो, पुल का मतलब यह है कि मटेरियल आप पूरा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको पुल करके रख रहे हैं, जब जितनी ज़रूरत है उतना ही दे रहे हैं, उसको बोलते हैं पुल सिस्टम. और पुश सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल आप पूरा दे रहे हैं, जो भी चाहिए पूरा दे रहे हैं, राइट. ऋत्विक पूछ रहे हैं डायनामिक एंड एक्सपीरियंस वर्कर रिक्वायर्ड इन JIT वाई. अरे JIT में मटेरियल पूरा नहीं दे रहे हो ना, जब जितनी ज़रूरत है उतना ही दे रहे हो. तो अगर डायनामिक और एक्सपीरियंस वर्कर नहीं होगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा अच्छे से, तो फिर वहाँ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना. सी, आई रिपीट, देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ. JIT के भी एडवांटेज हैं. एडवांटेज क्या है? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंट्रोल कर दिया उसने. यू नीड नॉट टू बाई इंटायर मटेरियल एट वंस, ये JIT कहता है, धीरे धीरे खरीदिए, ठीक है, और जब जितनी ज़रूरत है. तो ये एडवांटेज हुआ. बट डिसएडवांटेज क्या है? व्हेनेवर देयर इज सम डायनामिक सिचुएशन, ये हैंडल नहीं कर पाता है. और वर्कर जो होंगे वो काफ़ी डायनामिक और एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको खुद का भी ब्रेन लगाना है, यस और नो. बट MRP में आपने क्या किया, सारा मटेरियल खरीद करके एक साथ दे दिया, सेफ्टी स्टॉक भी दे दिया, यानी उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो एवरेज वर्कर से भी काम चल जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल है. लेकिन उससे नुकसान क्या होता है MRP में? आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ सारा पैसा आपने ब्लॉक कर दिया अपने रॉ मटेरियल में, राइट. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस केस में, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा तो नहीं लगेगा, तो इसीलिए MRP को इस केसेस में फॉलो करते हैं. छोटा इवेंट, मैंने बताया ना, घर पे छोटा इवेंट हो तो सब कुछ खरीद के ले आते हो, लेकिन मान लो कोई बड़ा इवेंट है तो सारी चीज़ें एक साथ खरीद करके नहीं लाते हैं, राइट. Yes, Raghav, you are right. You are thinking in right direction. Nice. See, Ritvik is asking, sir, JIT is used in which industry? Arey, my dear friend, these are two ways to manage the material. So, Six Sigma management, lean concept, right? So, whenever lean concept we will study, so in lean, what is lean? You have to become efficient. When we have to become efficient, means from less resources you have to work. So, that supported JIT. So, वो later I will explain when lean will come, right? तो ऐसा नहीं है कि किसी इंडस्ट्री में MRP लगाते हैं, किसी इंडस्ट्री में JIT लगाते हैं, जरा समझना. जनरली इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं ताकि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक ना हो जाए. आप मेरी बात समझ रहे हैं? यूजेस कहाँ पे कैसा है, उस हिसाब से हम काम करते हैं. अभी तो समझाया कि छोटा इवेंट होगा घर पे भी तो एक साथ खरीद के ले आओगे. अब मान लो शादी है या कुछ बड़ा इवेंट है तो उसमें सब एक साथ तो नहीं लाते ना, वो उसको फ़ोन नंबर ले लेते हैं कि ठीक है
कोई भी इवेंट सपोज 2-4 दिन तक अगर चलने वाला है तो उसमें तो आप सारा चीज एक साथ लाओगे, रखोगे कहाँ वो उतना, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों डिफरेंस, राइट। एक में ऐसा समझो हम मटेरियल पूरा खरीद करके दे रहे हैं, वो एमआरपी, और दूसरे वाले में जेआईटी में जब जितनी जरूरत है बस उतना दे रहे हैं, पुल करके रख रहे हैं, दैट इज पुल अप्रोच। ये दो अप्रोच है, गेटिंग माय पॉइंट। जहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना है, पैसे को आप कैश इन हैंड रखना है, तो आप जेआईटी लगाओगे। जहां पे चलो कोई बात नहीं, सारा खरीद के दे दो, कोई इशू नहीं है, तो वहां एमआरपी लगाओगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 5S कॉन्सेप्ट। ये 5S कॉन्सेप्ट एक्चुअली गिवन बाय, राइट, यस राइट, कभी वानन इज टेलिंग एमआरपी जेआईटी रिड्यूसेस द इन्वेंट्री कॉस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, इनिशियल जो आपका कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक, राइट, वेरी नाइस। सो जेआईटी में इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ही कम, जितनी जरूरत है ला करके दिया, बात खत्म। बट एमआरपी में क्या होगा, आपको पूरी इन्वेंट्री रखनी है, सेफ्टी स्टॉक रखना है, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, वही तो बता रहा हूं, ठीक है, वेरी नाइस, अच्छा सोचा। चलिए अब आ जाइए 5S। 5S में सी अगेन आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। दिस 5S, 5 Japanese terms are there, right? Only here only these Japanese terms are there, so डरना नहीं, करेक्ट। इन इंटायर सिलेबस अब कभी नहीं आएगा, नेवर विल कम, ओनली हियर ओनली, राइट। तो ये क्या है जरा समझो। सो आई एम गिविंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज सपोज from different states, students came here in Delhi to study in MEDICI. So they shared a room, correct? So in that room there are 3 students, मान लीजिए, but room space is small ना, right? So all 3 student has decided कि see, whatever is important only keep those material, remaining material can be discarded, right? Right. So that is in industry also. This first phase is called as Siri, or English name is sorting. This is Japanese name, this is English name. So first S is Siri or sorting, means going through all the tools, material, etc. in the plant and work area and keeping only those material which are important, right? Essential items. Everything else is stored or discarded. So this is called as Siri or sorting. Okay. Then just take that example of room, correct? 3 students are from different areas, all together sharing a common room. In college hostel also you might have shared, right? Common room. So only keep only those items which is necessary, which is required. Everything else will be discarded, right? Okay. So in industry also you can relate it. Then the another S is called as sitten or straighten or set in order. It means sitten is actually Japanese word, straighten or set in order means English word. Means then you all 3 has decided important elements, essential elements are there. Now keeping of those elements, ki where what should be placed. So chair table is there, so near chair table there must be books, na, right, like that. So setting all the correct material in a order so that your efficiency will increase, right? So here also in industry also, suppose some machine is there, so related to that machine all material or tools will be near to that machine, so that their efficiency will be more, correct? Focuses on efficiency to arrange the tools, equipment and parts in a manner that promotes workflow, right? Okay. Then the third point, that is called as SISO or sweeping or signing. This is what, see, those 3 students, first of all they have
done the sorting, Siri, then sitten means set in order, and the third is they have made a rule, whenever suppose one student has studied on the table, chair, right, then keep all the books from where they have taken and clean the tables and all, means make them okay, so that whenever next student is going to sit over there to study over there, then they will not feel any difficulty, right. So in industry also, when worker suppose is working, then if their time completed, their lot, correct, their schedule completed, then when they are leaving the station, they should keep all the equipments, all the material at their places only, and clean the machines and everything, because whenever next lot, next group of people will come to work at that place, so they should not feel difficulty to work over there, right. So here also in CISO phase or sweeping or signing phase, at the end of each shift, work area is cleaned up and everything restored to its place, right. Getting my point? And the fourth phase is Shiketsu or standardizing. What is this standardizing? Standardizing means, suppose 3 persons are there in the room, but only 2 are making the rule and they are not telling that rule to the third one. Suppose this third one does not know what is their role, then is it possible to implement those rules? No. So standardizing means awareness, if whether you have provided all the awareness, all the things to all their roles and responsibility, just you have clear all the roles and responsibility to the all person, that third one also, yes or no? Yes. So checking those things, right, means everyone knows exactly what his or her responsibility are to keep above all 3S, means in above all 3S, that is CISO, correct, then sitten, and the third is CISO, correct. So Siri, sitten or CISO. So in all three, what is the roles and responsibility of the people, whether you have told them, you have trained them or not, that is called as standardizing, correct. And the fifth phase is Shitsuke. Shitsuke means sustaining or maintaining. This is very difficult, correct. In college life also, suppose you are sharing a room, तो हमेशा सेमेस्टर एग्जाम के टाइम में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पेपर के बाद अच्छे से सारे सामान को ठीक से रखा, बिल्कुल सारे रूल बने, ठीक है, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाता है. तो मीनिंग यही है कि इधर वो लोग सस्टेनिंग मतलब शित्सुके, मेंटेनिंग, यानी उसका रिव्यू करना कि वेदर वी आर मेंटेनिंग दोज थिंग और नॉट. So that is called as Shitsuke or sustaining. In note, a sixth phase also is there, that is called as safety. So whenever they ask you 6S or 6S, then add safety, and if they are asking about only 5S, then these are the 5S, right. And only here these are 5 Japanese terms, so it is difficult, I know that, to remember. So don't be afraid, only here only 5 terms are there. So what was the first term? Can we revise? पहली बार रूम को क्या किया बताइए, कि जो भी इम्पॉर्टेंट सामान है वही रखेंगे, राइट. यस सर. तो यानी कि बताइए सॉर्टिंग, करेक्ट, सीरी भी कहते हैं. अच्छा, दूसरा सेट इन ऑर्डर, उस सामान को कहाँ रखना है. जैसे अभी ठंड के टाइम में जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स नोट्स होंगी अपने आप बेड के पास आ जाएंगी, कि बेड से उतरना ना पड़े, है ना, बस रजाई में बैठ करके पढ़ सकें, राइट. सो दैट इज सेट इन ऑर्डर, अपने आप वो ऑर्डर में लग जाएगा, करेक्ट. देन द थर्ड इज क्लीनिंग, है ना, कि आप जो भी सामान जहाँ है उधर रख दीजिए, राइट, और साफ सुथरा कर दीजिए. द फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजिंग, कि सबको बताया या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. एंड फिफ्थ इज मेंटेनिंग, मेंटेनिंग मतलब उसको रिव्यू करना कि सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. एंड सिक्स्थ एस इज सेफ्टी, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है. चलिए, तो ये हो गया. नाउ कम टू द पोकायोके. चलो, पोकायोके मैंने बताया था कि
just design the process or design the work such that you will not have any problem, right? ह्यूमन एरर ना हो, ह्यूमन एरर को हम कम कर सके। एग्जाम्पल कौन सा दिया था? पेन ड्राइव का या फिर इलेक्ट्रिक प्लग का, राइट? आप गलत लगा ही नहीं सकते। तो बस एक बार इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सपोज दीज आर आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, राइट? प्लीज देखिए। डन एवरीबॉडी? ठीक है। करेक्टिंग ड्राइंग अटेंशन टू ह्यूमन एरर एज दे अकर। आप एग्जाम्पल वहीं बुक पे लिखना है तो लिख लीजिए, पेन ड्राइव या इलेक्ट्रिक प्लग। अनूप पूछ रहे हैं सर सारे टर्म जापानीज में क्यों रखे हैं? भैया जो इन्वेंट करेगा वो अपना नाम ही तो रखेगा। समझ में आया ना? अभी स्टोरी समझाया था ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद उनके आर्मी सभी लोग फ्री थे तो वो लग गई इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया, राइट? मंजीत कह रहे हैं सर लास्ट बेनिफिट एक्सप्लेन प्लीज। अरे लास्ट बेनिफिट क्या है? आप अगर डिजाइन ऐसा कर दोगे जिससे कि गलतियां नहीं होगी तो जो भी ह्यूमन एरर के चलते कोई भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम आने वाला है नहीं होगा ना। मतलब आप डिजाइन, पेन ड्राइव का एग्जांपल तो दिया, अब ऐसा डिजाइन कर दिया आप गलत लगाओगे नहीं, गलती करोगे नहीं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपल, राइट? राइट, इसके बेनिफिट जरा पढ़ लो। देखो ठीक है, अगर आप ऐसा बना दोगे कि गलतियां नहीं होंगी, हाँ ट्रू सोहेब बागवान, बिल्कुल ठीक बोला आपने। राइट, मतलब आपको देखो प्रोसेस में अगर गलतियां होने के चांस ही कम है तो ट्रेनिंग भी कम देना पड़ेगा, जल्दी समझ जाएंगे सब करना क्या है। रिड्यूस नंबर ऑफ रिजेक्ट और वेस्ट, राइट? हाँ राइट, यस मोहित, पहले मैंने स्टोरी की तरह सब समझा दिया था, अभी उसी को वर्ड में दिखा रहा हूं कि देखो ऐसे आएंगे पेपर में तो तुम पहचान लेना।
हाँ राइट रोहन, USB टाइप सी, हाँ बिल्कुल ठीक। रिड्यूस नंबर ऑफ रिजेक्ट और वेस्ट, अनबर्डनिंग ऑफ ऑपरेटर्स फ्रॉम रिपीटेटिव ऑपरेशन। मतलब अगर एक ही तरह का काम उसको दिन भर करना है तो आप प्रोसेस ही ऐसा बना दो कि वो गलतियां ना करे, क्योंकि एक ही तरह का काम दिन भर करेगा तो दिमाग इधर उधर जाता है ना, तो ह्यूमन एरर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे ABCD लिखने के लिए मैं आपको दिन भर बोलूँ कि 1000 बार लिखो, तो हो सकता है P के जगह Q के जगह P लिख दोगे। लेकिन अगर मैं कुछ उसमें चेंज डिज़ाइन में ही ऐसा कर दूं कि आप P को P ही लिखोगे, अगर Q लिखोगे तो गलती पता चल जाएगी। तो वही पोका योके है। चलो आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा इधर हम आएंगे, अब आ जाइए कंकरेंट इंजीनियरिंग। करेक्ट, व्हाट इज कंकरेंट इंजीनियरिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंकरेंट? कंकरेंट वर्ड सबसे पहले कब सुना आपने, याद करो। ये कंकरेंट वर्ड आपने सबसे पहले कब सुना, दिस कंकरेंट वर्ड? तो कंकरेंट मतलब आपने सुना होगा कंकरेंट लाइंस, यस और नो, यानी लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट एज कॉल्ड एज कंकरेंट लाइंस, यस और नो? यस। सो नाउ पॉइंट इज सेम, यही कॉन्सेप्ट ले लीजिए, राइट? मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं बोर्ड पे लेता हूं, जरा समझिए। करेक्ट, टू काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज देयर। एक को बोलते हैं लीनियर अप्रोच। लीनियर अप्रोच, linear approach means suppose your sales and marketing team, correct, has taking review from customer, ideas from customer, market से लेकर के फिर वो अपने आइडियाज़ डेटा देंगे डिज़ाइन टीम को, फिर वो जाएगा प्रोडक्शन टीम के पास, राइट? देन टेस्टिंग, करेक्ट, और टेस्ट होने के बाद फिर वो कहा जाएगा कस्टमर के पास, और फिर यहाँ से कस्टमर से वो इनपुट कौन लेंगे? सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। मीन्स दे विल आस्क कि वेदर प्रोडक्ट्स आर गुड और नॉट, इफ़ यू वांट टू टेल एनी काइंड ऑफ चेंजेस, फीडबैक, वो पूछेंगे कि कुछ भी है तो बताइए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर अप्रोच, 1 by 1। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा इंडस्ट्री में ना, वैसे वैसे क्या हुआ कि लोग फास्ट हो गए, प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। ऐसे अगर एक के बाद एक होगा तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दिस इज लाइक सीरीज नेटवर्क, सीरीज नेटवर्क, ठीक है, ये सीरीज नेटवर्क की तरह एक के बाद दूसरा। लेकिन कंकरेंट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, कंकरेंट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि लॉन्ग बिफोर एग्जीक्यूशन, है ना, कंकरेंट, सभी लोग एक टेबल पे बैठ जाएंगे, जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं सभी लोग एक टेबल पे बैठ जाएंगे लॉन्ग बिफोर एग्जीक्यूशन, राइट? एंड दे विल डिसाइड, करेक्ट, ऑल देयर टास्क, कि किसका क्या काम है, और पैरेलली सभी लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल एग्जीक्यूशन, करेक्ट? जो एग्जीक्यूशन होगा वो पैरेलली होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग बिफोर एग्जीक्यूशन सभी एक कॉमन टेबल पे बैठ करके, ये कॉमन टेबल पे बैठना ना, एक पॉइंट पे मिलना वाली फील आती है, दैट इज कॉल्ड एज कंकरेंट इंजीनियरिंग। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? ये पुराने ज़माने का अप्रोच है, ये नए ज़माने का अप्रोच है कि सभी लोग एक साथ बैठेंगे और पैरेलली अपना टास्क क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि दे विल टेक लेस टाइम, और आगे बताऊंगा आपको, टाइम जितना कम लगता है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी बढ़ जाती है, राइट? दूसरा पॉइंट, वेस्ट लॉस कम होंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कई बार सपोज डिज़ाइन ने वो काम करके प्रोडक्शन को दिया,
प्रोडक्शन वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट कंप्लीटली, तो फिर इनमें आपस में चलता रहता है, ओ जी हमें ये नहीं था, हमारे पास तो ये मशीन है ही नहीं, प्रोडक्शन पीपल विल टेल कि ये मशीन तो है ही नहीं, आप ऐसा डिज़ाइन कैसे बना दिए, अब ये कैसे बनाऊं मैं इधर, समझ रहे हो, कम्युनिकेशन गैप. But here there will be no communication gap because each and every heads are present over here. So they are deciding, they are discussing their roles and responsibility and working in parallel. Getting my point? So these are some advantage, right, of concurrent engineering. तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लास नोट्स में दोनों का ये डायग्राम बना लीजिए, इसको थोड़ा सा पैरेलल सर्किट की तरह समझ लीजिए, इसको सीरीज नेटवर्क की तरह समझ लीजिए, तो आसान हो जाता है समझना. ठीक है, प्लीज राइट डाउन, फिर मैं स्लाइड पे आता हूं. राइट, yes Ritvik, you are right. डन, वेरी नाइस. अब जरा आते हैं स्लाइड में. करेक्ट, अब इसको पढ़िए जरा एक बार प्लीज, एक बार पढ़ो देखो, बिकॉज आपको बस ये वर्ड, ये लाइंस को समझना है. यस कार्तिक, यू आर राइट. कार्तिक आनंद, अरविंद, सॉरी, कार्तिक अरविंद, यू आर राइट. अरुण बोल रहे हैं सर राइटिंग समझ नहीं आ रही आपकी. कोई बात नहीं अरुण, मैं और क्लियर लिख दिया करूंगा. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. लॉन्ग बिफोर एग्जीक्यूशन, लॉन्ग बिफोर के बाद लिखा है लॉन्ग बिफोर एग्जीक्यूशन. हाँ, राइट राइट भगवान, यू आर राइट. भगवान सहाय शर्मा, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक. चलिए ये पढ़ लिया आपने. इट इज ऑल्सो नोन एज साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग. साइमल्टेनियस समझ गए, एक साथ. And it is a method of designing and developing products in which different stages run simultaneously, that is parallelly, rather than consecutively. Correct? Consecutive नहीं होता, एक साथ, parallelly, है ना. ठीक है. Then अब इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, जरा पढ़ो और देखो.
और ये जो टूल है, ये टूल मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में पढ़ना है हमें। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, दीज टू आर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। और ये टूल समझ जाओगे तो कंकरेंट इंजीनियरिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, राइट। आलोक, लॉन्ग बिफोर एग्जीक्यूशन का मतलब जरा समझना कि एग्जीक्यूशन से बहुत पहले सब लोग एक साथ मीटिंग कर लेते हैं, किसकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और एक साथ पैरेलली वो काम स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग बिफोर एग्जीक्यूशन। समझ रहे हो? डन, करेक्ट। देख रहे हो क्या फ़ायदा हुआ बताओ? टाइम है ना, टाइम टू मार्केट है ना, डेवलपमेंट टाइम, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, कॉस्ट कम होगा, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल इंजीनियरिंग और कंकरेंट इंजीनियरिंग। ये दोनों टूल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, डिटेल में आएगा, ये TQM चैप्टर में आएगा, ये TPM मेंटेनेंस के टाइम आएगा, ठीक है। अब आ जाइए वैल्यू इंजीनियरिंग वर्सेस वैल्यू एनालिसिस, राइट। तो ये क्या है, अब पहले ज़रा समझो व्हाट इज़ वैल्यू, वैल्यू किसको बोलते हैं, राइट। फिर आते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस में। बताओ तो वैल्यू का मतलब क्या कॉस्ट होता है, बताइए। तो नहीं सर, वैल्यू अलग है, वैल्यू इज इक्वल टू होता है क्वालिटी, एक फार्मूला जैसा बना दिया गया है, इनटू सर्विस डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू साइकिल टाइम। मतलब साइकिल टाइम मीन्स जो ओवरऑल टाइम लगता है किसी भी प्रोडक्ट को शोरूम में पहुंचाने तक, ठीक है, उसको साइकिल टाइम कहते हैं। कॉस्ट तो जानते ही हो, पैसे। क्वालिटी, तो क्वालिटी अभी पूरा चैप्टर ही क्वालिटी है, पढ़ते रहेंगे। सर्विस, किस लेवल की सर्विस दे रहे हैं, क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब मिलकर के एक वैल्यू को डिसाइड करते हैं। अब आपको एक डाउट होगा कि सर वैल्यू और कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स इफ कॉस्ट इज मोर वैल्यू इज लेस। यस, राइट राइट सर, वो कैसे सर, है ना। सपोज ये मार्कर, करेक्ट, आई नीड इट, लेकिन अगर ये बोलेगा कि ये सपोज 1000 रुपीज़ का मिलेगा, तो यानी कि उसकी, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे लिए उतना नहीं है। फिर इसका मैं सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा कि कैसे मैं यही काम कम पैसे में करूं। क्यों? क्योंकि उतनी वैल्यू नहीं है मेरे लिए। दूसरे शब्दों में ऐसे बताता हूं, जरा समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। होता क्या है, प्लीज लिसन एवरीबडी। जब आप कॉस्ट को बढ़ाते हो, समझना, स्टार्टिंग में तो वैल्यू बढ़ती है, नो डाउट, करेक्ट। कॉस्ट के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, और अब अगर कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो एक अच्छा डिज़ाइनर वो होता है, राइट, जो उस कॉस्ट पे जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी वहाँ पे डिज़ाइन करके दे, राइट। सो दिस इज द रिलेशन वाई वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। मीन्स एक लिमिट के बाद अगर आप कॉस्ट बढ़ाते हैं तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए शुरू में बोथ आर लीनियर, बट ऑफ कोर्स इस रीजन में डिज़ाइन ही नहीं होता, इसीलिए हम इस रीजन की बात नहीं करते। वी आर टॉकिंग इन दैट रीजन जहाँ पे डिज़ाइन होता है, और उस रीजन में एक पॉइंट के बाद अब आप कॉस्ट बढ़ाते हो तो उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो जैसे BMW, नॉट BMW, वो तो चलो बहुत लोग खरीद रहे हैं, रॉल्स रॉयस की कार ले लो,
तो रोल्स रॉयस डज नॉट थिंक कि मुझे सबको कार देना है या मेरे, वो जानता है कि जो कस्टमर इस लेवल के होंगे मुझे उन्हीं के लिए कार बनानी है। तो दैट इज वाई दे आर गिविंग देयर बेस्ट, मीन्स कॉस्ट का टेंशन नहीं है, समझिएगा। लेकिन हम उस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे जो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इंटेंशनली बनाया जा रहा है कि मेरा कस्टमर इसी रेंज का होगा, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पे मास की बात कर रहे हैं, कॉमन मैन की बात कर रहे हैं कि जब आप अपने प्रोडक्ट किसी कॉमन मैन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको कॉस्ट एक लिमिट तक रखना होगा। क्यों? क्योंकि उसी लिमिट पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब अगर कॉस्ट बढ़ा दोगे तो उसकी वैल्यू फिर कम हो जानी शुरू हो जाती है। यानी कि किसी कार को आपने ज़्यादा महंगा बना दिया तो कस्टमर विल नॉट बाय, वो बोलेगा मेरे लिए इतनी वैल्यू ये नहीं रखता है, मैं इससे कम पैसे का ये वाला कार खरीद लेता हूँ क्योंकि मेरा काम इसमें भी चल जाएगा, यानी कि मेरे लिए यही वैल्यूएबल है। आप समझ रहे हैं, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सा ये वैल्यू पे मैंने आपको आइडिया दिया। नोटबुक में फटाफट इसको लिख लो, फिर मैं आता हूं वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। वैल्यू समझा दिया ना, व्हाट इज वैल्यू? तो वैल्यू इस तरह से रिलेटेड होता है कॉस्ट से, ठीक है। और टाइम तो आप जानते ही हो, अगर टाइम बहुत ज़्यादा लगा दोगे किसी काम में तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कैसे? सपोज तुमसे पहले किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो फिर तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा मेहनत सब बेकार हो जाएगा, राइट? तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हम कितने कम टाइम में उसको कंप्लीट करते हैं, राइट? तो उससे भी वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब यही सब्जेक्ट है तो इतना सारा सिलेबस है, लेकिन अगर मैं एक ऑप्टिमम टाइम में कराऊं तो उसकी वैल्यू है। अब मान लो मैं इसको 2 महीने तक पढ़ाता रहूं तो फिर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्यों? आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा, जबकि उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड एज साइकिल टाइम। उस काम को करने में कितना टाइम दे रहे हैं हम, राइट? लिख लीजिए जरा। वैल्यू इंजीनियरिंग आई एम एक्सप्लेनिंग, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड वैल्यू इंजीनियरिंग टिल नाउ। हाँ, राइट ऋत्विक, करेक्ट। हाँ बस जस्ट राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड। इफ यू हैव रिटन प्लीज टेल मी। just in 2 minutes I am going to conclude. Please complete it first of all. Noted. Very nice. Very nice. So now listen, what is difference between these two? Correct? Value engineering and value analysis. Now my dear student, try to understand. Value already you know that. Value means those points, whatever I have explained you. Now see, what is difference between engineering and analysis? So engineering means during design or production. Correct? And analysis means after design or production, means reaching, don't write, that is written, reaching to customer, means after reaching to customer, if you are finding what customer think about value, that is value analysis. Means, I repeat, once this product has been designed, manufactured and it reached to me, so now how much valuable is this for me, for as a customer? That is value analysis for a company. So company people will come and they ask,
सर कैसा काम कर रहा है, इंक कैसा है, डिजाइन कैसा है, ज्यादा थिक तो नहीं है. दिस इज वैल्यू एनालिसिस. बट before delivering to customer, whatever they are thinking about value, that is called as value engineering. So now read it and you will get the point. Don't write it, just read it. I've written here and just I'm concluding here only. Please read it. Okay, got it. Thank you, Tushar. Thank you. Correct. Kasturi Das R Acharya. Right. Thank you everybody. Thank you for your nice comments. तो चलिए कल मिलते हैं फिर. Right. Timing will be same. Right. कल मिलते हैं. A lot of thanks to you. So tomorrow again same timing 8:30 na, 8:30 onwards. Right. Thank you.